तो अभी पहले तो ये बताइए लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी लाइफ में क्या चल रहा I think managing my 7-year-old, how to make him study, that is my life. है? सही, बट ये तो आपको आता होगा यार, मतलब टीचिंग तो आपने प्रोफेशनल टीचिंग की हुई है। No, that's okay, but with your own son, I think things change. And हाँ, nowadays, parenting is so tough. I feel that parenting is one of the most big struggle. I want to understand this. How is it different now? It's What different were you now. doing wrong पहले? वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। I think हमारे माँ बाप तो हमें मार के पीट के धमका के बिठा देते थे. So now हाँ। it's not the same thing with the kids. So nowadays kids are like you cannot hit them, you cannot scold them. So it's like so much difficult, yeah. बट आप एक बात मुझे बताओ, जब आप टीचिंग करते थे उस वक्त ये थॉट आता था कि कभी अपनी लाइफ में जो है एक बच्चा आएगा उसको ही पढ़ाना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही No, है to be हमारे। very honest, I always expected my son to be कि वो तो पता नहीं क्यों मतलब I have always interest in studies तो मुझे लगा कि ये बड़ा interested होगा. Now my seven हाँ। year old he comes to me and he tells me मम्मा आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती. तो I said okay I'll understand gradually. So हम्म। so basically, I think earlier it was easy to, parents were not having that kind of issues and hiccups. Now it's like mostly single child, and then they are having their own tantrums. So I feel now parenting is really tough. You cannot tell Yes, them they'll I think parents are more aware now because our parents surely they weren't, I they did don't not know know whether कि we are हमें aware कैसे or we कैसे are made ट्रॉमास दिए aware. उन्होंने। So I'm saying that I don't know whether we are aware or whether we are made aware. Right. No, Yeah, no, of who course wants we to go? are we are aware. There is no doubt about it. But Yeah. starting and starting with your journey, how it started. Your journey you started as a teacher, I think, और यहाँ तक आप पहुंचे, उसके बीच में बड़े सारे एग्जामिनेशंस जिंदगी ने भी लिए और बाकी सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम्स भी चल ही रहे थे। ये कहाँ से शुरू हुई, ये टीचिंग से लेकर? क्योंकि यूजुअली हमारे देखो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बेटी टीचर बन गई है, अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के Yeah. इसके हाथ पीले करवा दिए जाए। ये कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके घर पे? It was not exactly हाथ पीले करवा दिए जाएं, but I feel, see, I belong to this. I don't know whether आजकल तो मूवी हिंदी मूवीज में बहुत आ रहा है the जाट community. So राइट। जयदीप अहलावत, I think he belongs to our community. So उसने काफी राइट। फनी डायलॉग्स को वो कर रखा है. But राइट। it's a very peculiar thing in our community. मतलब हमारे यहाँ पे ये होता है कि लड़की के लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है, टीचिंग. So राइट। the same thing happened with me कि जब when after 12th I got into engineering also. Not many people ओके। know, I got into engineering and my mother is a primary school teacher. और हम्म। उस टाइम पे जब हमने जस्ट 12वीं की थी तो तब वो होता था कि भाई सरकारी नौकरी, बिकॉज देयर इज अ बिग फैसिनेशन अमंग नॉर्थ इंडियंस फॉर द गवर्नमेंट जॉब. तो बिल्कुल। तो उनको लगता था कि जेबीटी की नौकरी, एक तो लड़की है तो 5-6 घंटे की नौकरी होती है, देन यू कैन मैनेज योर हाउस होल्ड ऑल्सो, तो टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन. दे डोंट इवन लाइक नर्सिंग और एनी अदर थिंग. डॉक्टरी भी, पुलिस तो भूल ही It जाइए. has to be, it has to be teaching, huh? टीचिंग. Very precise, very clear in the heads. Clear in their head, especially for the girls, that they have to be teachers. हम्म। So the same thing happened with me. My mother was a primary school teacher, though she never forced me, but somehow I also felt अच्छा that पूनम, आप जितना हिंदी रखेंगे ना उतना अच्छा होगा क्योंकि ऑडियंस। हाँ। ठीक है. तो मेरी मदर खुद एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने मुझे फोर्स तो किया नहीं, बट हाँ। जैसे होता है ना कि ऑप्शन एंड के इंजीनियरिंग करके भी आजकल नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो तुम देख लो, तुम पहले टीचिंग कर लो और टीचिंग करके फिर कुछ भी कर सकते हो. सो हाँ। और दूसरी बात ये भी थी कि कहीं ना हाँ। कहीं आई ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा से बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, लाइक कि टू अर्न, टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू सपोर्ट माई फैमिली एंड ऑल. तो राइट। राइट। तो वो भी एक रीज़न था. तो मैंने जब जेबीटी, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर वहाँ पे लोगों को पता है, जेबीटी इज़ अ जूनियर बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, इज़ अ प्राइमरी स्कूल हम्म। टीचर ट्रेनिंग कोर्स. तो हम्म। 12th के जस्ट बाद यू आर एलिजिबल, और हम लोगों ने पेपर, और उसका बकायदा पेपर होता था, एग्जाम होता था, हम्म। तो हमने वो पेपर दिया और सिलेक्ट हो गई मैं. तो आई, यू वोंट इमेजिन, हमारे कोर्स में हम 4 या 5 ऐसे थे जो सिर्फ 12th के बाद आए थे, बाकी कोई एमएससी था, कोई बीएड था, कोई एमएड भी था. मतलब इट वाज सच सिनेरियो दैट टाइम हम्म। इन हम्म। 2000. हम्म। So I was just तो 18 ये and कब की बात है, ये कौन से साल की बात है? 2000 2000 2000 की, अच्छा, ओके। 2000 की, and हाँ। I was just 18, साढ़े 18 हाँ। साल, just after हाँ। 10th standard. And I was and then हम लोग, मैंने वो ज्वाइन कर लिया.
सो हाँ, ज्वाइन कर लिया तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 2 साल का होता है, और जब आप टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो यू कैन नॉट इवन डू ग्रेजुएशन, आप मतलब लगातार 2 प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर सकते नहीं एक ले साथ। सकते हो, राइट। तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग किया, और वो 2 साल का कोर्स होते ही एज जैसे होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसीज 5,000 निकलती हैं इकट्ठा। आपकी अच्छा, नॉर्मल टीजीटीज या पीजीटीज की निकलेंगी मान लो 25-30, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स में जब 5,000 वैकेंसी हैं तो आपका इजीली वो बीच। ज्यादा हो जाता है। हालांकि कंपटीशन हमारे जेबीटी के लिए बहुत अच्छा खासा, मतलब एंट्रेंस टेस्ट था हमारा बकायदा, उसमें भाई हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी यस, मतलब कंपटीशन। यस, यस। सो वो जब हुआ तो आए मतलब हमारी जॉब भी लग गई, जॉब लग गई मेरी, और मैं सरकारी स्कूल में एज अ टीचर आई वाज घर टीचिंग। में तो ऐसे लड्डू बटे होंगे ना हर जगह, नहीं, हैं? लड्डू तो नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट माय फादर ऑलवेज थॉट कि मतलब उनको लगता था कि कुछ और ज्यादा जिंदगी में कर सकती है, एंड माय अरे वाह। मदर आल्सो। मेरी मदर को भी ऐसा नहीं था कि यहीं रुक जाओ, उनको ये था कि हाँ, बेटा एक स्टेपिंग सी, हर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उसके बाद में तुम्हें जो करना है वो करो, सेफ्टी नेट। यस, सेफ्टी नेट। सो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है हम लोगों को ये कन्वर्सेशन भी शुरू करने की, कि सेफ्टी नेट कई बार, आई ऑलवेज फील कि अगर वो सेफ्टी नेट नहीं होता तो हो सकता है मेरा सिविल सर्विसेज बहुत जल्दी क्लियर हो जाता पहले, वाह। बिकॉज एक ना एक एक एस्पिरेंट्स करके सीरीज थी जिसमें मैंने लास्ट ईयर काम किया, और उसमें ये एक पूरा एक एपिसोड था प्लान ए और प्लान बी के बारे में, कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो या कई बार यही बात है कि अगर कई बार प्लान बी के चक्कर में आप इतना रिलाय करते हो उस चीज पर यस, दैट यू डोंट गिव योर 100% टू इट। यस, यू डोंट गिव योर 100%, एंड मोर देन 100% वो सेल्फ बिलीफ हम लोग वो मीडियोकर उसमें रह जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचिंग इज नॉट अ नोबल प्रोफेशन, इट इज अ राइट। वेरी नाइस प्रोफेशन। बट जैसे मैं कभी भी, मैं हमेशा से क्लियर थी कि मुझे टीचर नहीं रहना, मतलब ये हम्म। सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। तो मुझे लगता है जो एनर्जी मैंने टीचिंग में लगाई, जितनी एनर्जी कोर्स में लगाई, फिर एंट्रेंस में लगाई, उससे बेटर तो ये था कि वो सारी एनर्जी में पहले ग्रेजुएशन करती और ये कर लेती एनीवेज। करेक्ट। सो टीचिंग का वो हुआ, और टीचिंग स्कूल में जॉब लग गई, और मैं साथ में ट्यूशन्स वगैरह भी सब कर रही थी। एंड उसके साथ में फिर ग्रेजुएशन मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी, क्योंकि अच्छा। आप रेगुलर जब आप जॉब में होते हैं तो पहले 5 साल आपको स्टडी लीव नहीं मिलता। अच्छा। तो हम्म। मैंने फिर ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से, और उसके बाद में जब जैसे ही ग्रेजुएशन हुई मेरी 2005 में, क्योंकि 2000 से हम्म। 2002 तक तो डिग्री हुआ टीचिंग का, फिर हम्म। 2003 में मैंने, 2002 में मैं जैसे डिग्री हुआ तो मैंने ग्रेजुएशन में एनरोल कर लिया, 2005 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो उस टाइम पे भी आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू, कि तब आईएएस और सिविल सर्विसेज हम सोचते भी नहीं थे, बिकॉज हमारा जो ग्रुप भी था वो सारा ऐसा था कि हाँ, टीचिंग। मैं वही सोच रहा था कि क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल पूरा का पूरा एक ऑलरेडी प्रोफेशन में है, कई लोग सैटिस्फाइड हैं कि चलो नौकरी चल रही है, जिंदगी मस्त चल रही है, कईयों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए होंगे, एक सेटल लाइफ की, तो ये कॉन्वर्सेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये कहाँ से फिर आने शुरू हुए? आई थिंक ये तो बहुत पहले मेरे घर में माहौल था, मैं हमेशा से टॉपर थी, तो हमारा मतलब घर में ये माहौल, तो पढ़ाई का माहौल हमेशा से था, और ये भी था कि यहाँ नहीं रुकना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। राइट। ये चीज़ तो थी, और ये चीज़ मेरे माइंड में भी क्लियर थी कि ये तो मतलब सिर्फ एक शुरुआत है, आई हैव टू डू गिव सम अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, और जनरली हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो ग्रेजुएशन के जब बाद होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, तो ग्रेजुएशन मैंने किया, और जैसे ही ग्रेजुएशन किया तो उस टाइम पे भी जैसे आपका यूपीएससी के लिए भी बेसिक ग्रेजुएशन या डिग्री चाहिए होती है, राइट। लेकिन व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट कि इवन एट द एज ऑफ 22-23 जब वो ग्रेजुएशन डिग्री आई और कंपटीशन एग्जाम की मैंने तैयारी शुरू करी, तब भी मेरा टारगेट सिविल सर्विसेज नहीं था, बिकॉज हमें लगता था उस टाइम पे कि सिविल सर्विसेज के लिए तो पता नहीं 18-19 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हाँ, एंड और पता नहीं क्या क्या, और तब 2 सब्जेक्ट्स होते थे तो लेने वही स्टैंडर्ड बैंक पीओ, एसएससी, को। है ना? हम सब मिडिल क्लास वालों की लाइफ कितनी नॉर्मल होती है, एक जैसी, कॉपी पे जेरॉक्स कॉपी निकली हुई है सबकी, सब सेम यस, तरीके से सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमारा सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपनी एबिलिटीज में, और ऊंचा ऊंचा एक होता है ना, एक ऊंची छलांग लगाने की कोशिश, वो शायद हम लोगों में उतना हम करेज, पता नहीं, या तो उस टाइम पे हम इतना वो नहीं, नहीं। हमारी सही नहीं, आप सही बोल रहे हो, हमारी पहली वाली जनरेशन में, मैं एक इंटरव्यू कहीं पर पढ़ रहा था किसी का, और उन्होंने बड़ी प्यारी चीज कही कि तब स्ट्रगल सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह का था। हम्म, तो आपके पास सर छुपाने की जगह भी है, तो भी आप 2 वक्त की रोटी का स्ट्रगल कर रहे हैं। सो व्हेन योर स्ट्रगल्स आर दैट बेसिक, तो आप सबसे बेसिक चीजों के साथ ही जीवन में चलते हैं। ये सेफ्टी नेट, ये हाँ, सरकारी नौकरियां, एक मुश्त पैसा इससे आ जाना। नेक्स्ट लेवल अभी टीचर हो आप हो तो इससे जस्ट हाँ, नेक्स्ट लेवल के लिए जंप करो, मतलब सीधा ऊपर वाला छलांग अभी नहीं सोच ऊपर सकते जाने हैं। के लिए। हाँ, और सेल्फ डाउट इतना स्ट्रांग भी होता है ना हमारे अंदर, तो या मतलब बचपन से लेकर अब तक
हम हमेशा सेल्फ डाउट में ही जी रहे होते हैं. Yes, and I feel after my journey, I always मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि self belief is one of the most important ingredients Absolutely, which we need to absolutely, have. Anyways, तो absolutely. और दूसरा आपका एक और मुझे लगता है कि आपका रेफरेंस ग्रुप, हमारा एक सोशोलॉजिकल कंसेप्ट होता है रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप के मतलब आपके आजू बाजू वाले लोग क्या कर रहे हैं, जनरली आप उसको देख के आगे बढ़ते हैं कि आपके आजू बाजू आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप में हो जाता है कि अच्छा वो एसएससी क्लियर कर लिया, चलो मैं भी एसएससी कर लेता हूँ, वो Absolutely. बैंक पीओ कर लेता हूँ. तो हमारा रेफरेंस ग्रुप भी, व्हाट आई वांटेड टू से, कि हमारा रेफरेंस ग्रुप भी जो हम, जब मैं हम कह रही हूँ तो मतलब हमारे सर्कल का ये बेसिकली. कौन थे, ये लोग कौन थे पूनम जो आपके साथ में लोग थे, इनके लाइक बारे में बताओ ना. माई हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन विद मी. हम लोगों ने दोनों ने ही प्राइमरी स्कूल टीचर की ट्रेनिंग करी, एंड ही इज नाउ इन. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे वापस आइए. तो यस, ये आप तब से जानते थे उनको? यस 2000 से. तो 2000 में वो हम 18 की उम्र से मतलब साथ में थे आप लोग. यस. ब्यूटीफुल. हाँ. So my husband, we like we are together since 2000. तो 2000 वाओ. में हम दोनों ही 12वीं करके आए थे, 12th करके आए थे. एंड हाँ. उन वो भी मतलब वो भी टीचर कभी नहीं रहना चाहते थे, बट वही जैसे होता है ना कि वो भी टीचिंग नहीं करना चाहते थे, उनका भी मतलब, बट वही चीज़ है कि वो सेम मिडिल क्लास फैमिली कि भाई पहले कुछ एक जॉब सिक्योर कर लो और उसके बाद देखेंगे क्या करना है. तो उन्होंने भी हाँ. मेरी तरह हम दोनों ने इकट्ठा, वी हैव बीन थ्रू दिस फेजेस ऑफ लाइफ. तो हम दोनों ने ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से करी और फिर हमने पेपर्स वगैरह देने शुरू करे. हाँ. फिर भी हम दोनों के अंदर ही करेज नहीं थी यूपीएससी देने की. सो बेसिकली ग्रेजुएशन हुई हम दोनों की, और फिर बेसिकली मैंने बैंक पीओ दिया, और उस टाइम पे बैंक पीओ भी बड़ा टफ माना जाता था, हाँ. बिकॉज मुझे याद है मैंने 3 बैंक के पेपर्स दिए, मेरे 3 बैंकों का क्लियर हुआ था. तो स्टेट बैंक मैंने ज्वाइन किया एज अ पीओ, और उसमें भी हमारा जीडी इंटरव्यू मतलब आई एम लखनऊ में प्रॉपर रिपोर्ट ओके, से हुआ था, ओके. और मेरा आई ये थिंक 3 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है ना आपकी लाइफ में. 5th रैंक. 3 मतलब हाउ आई कुडंट गेट इट. आपने 3 बार यूपीएससी भी निकाला. यस, 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 यू कैन से दैट. यस. तो ये 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है ओवरऑल मैं कंपैरेटिव एग्जाम्स की जब बात आती है. यस. सो मैं ये बताना चाह रही थी कि 3 बैंक पीओ क्लियर करने के बावजूद मेरे में तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया. मैंने आराम से बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन कर ली, एंड आई वाज लाइक मैं आराम से वो कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड की ग्रेजुएट लेवल में सिलेक्शन हो गया उनका, और उन्होंने जीएसटी एज अ इंस्पेक्टर. नाउ हम लोग, मैं बैंक में थी, और बैंक के बाद में फिर हमारी शादी 3 साल के बाद में, तो वो जीएसटी में थे, मैं बैंक में थी. और बैंक में कहीं आई थिंक आई रिमेम्बर, मैं एक बार एक चीफ सेक्रेटरी से मिली थी चंडीगढ़ के. मैं तब चंडीगढ़ पोस्टेड थी, और मैं वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से जब मिलने गई, उनका कुछ अकाउंट, कुछ उनके बेटे का, मैं तब एनआरआई ब्रांच में थी, और उनके बेटे का कुछ इशू था बाहर का. तो मैंने वेंट टू हिज प्लेस एंड मैंने देखा, तो तब तक आई वाज लाइक अराउंड 26-27, और जब मेरे को मैंने उनका देखा, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. मतलब उनका लाइफस्टाइल और वो सब देख के मुझे लगा कि हाँ. चलो हमें भी ट्राई करना चाहिए. तो तब मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड थी बैंक में, और मैंने फिर उसी टाइम पे, क्योंकि मैं बैंक की जॉब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, तो और हस्बैंड भी क्योंकि एसएससी ग्रेजुएट लेवल में थे सीजीएल के थ्रू, तो मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल भी दिया, एंड अगेन मैंने वो क्वालिफाई करा. जबकि एसएससी ग्रेजुएट लेवल भी, आई थिंक जो लोग ये शो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि उसमें भी 30 to 40 lakhs बच्चे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई राइट, करते हैं. राइट. सो इट हाँ. इज़ अगेन इक्वल कॉम्पिटिटिव. तो मैंने तब मतलब एसएससी ग्रेजुएट लेवल भी दिया साथ में, और फिर मैंने उस टाइम पे मतलब एट द एज ऑफ 26 and a half एंड ऑल, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. और जैसा सब जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले इतने सारे डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो गाइडिंग फैक्टर नहीं था मेरे पेयर ग्रुप में भी, आई वाज द ओनली वन हु स्टार्टेड दिस थिंग. एंड आई राइट. मस्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे हस्बैंड, क्योंकि व्हेन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि भाई मैं तैयारी शुरू करना चाह रही हूँ एंड ऑल, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर मैरिड लाइफ, तो ही सेड कि ओके ओके यू डू, आई एम विद यू. और फिर हम दोनों ने तैयारी शुरू करी. तो बट इस वक्त आप नौकरी भी कर रहे थे साथ में, या आपने नौकरी छोड़ दी? ये नहीं नहीं, नौकरी मैंने कभी नहीं छोड़ी, मैं 2002 से नौकरी कर रही हूँ. सो मिडिल आई क्लास हैव मेंटालिटी को ऑलवेज हमने गिवन कभी नहीं छोड़ा है, एग्जाम्स उसको एंड हमने आई पकड़ हैव. के रखा है. Yes, because sometimes we cannot afford to also. मतलब आपके पास Absolutely. इतनी, Yeah, when yeah, you yeah. are married you have got responsibilities also. Right. So that is there.
तो फिर मैंने पहली बार तैयारी शुरू करी चंडीगढ़ में। फिर अब वो जैसे होता है ना गाइडेंस, कुछ कुछ देखना, अब तो बहुत है पे बहुत सारी। टॉकिंग अबाउट 2009 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। 2006 मिड की बात कर रही हूँ मैं, 6-7 की। ओके। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो ये होता है कि जब हम पहला अटेम्प्ट देते हैं तो प्रीलिम्स पे इतना फोकस होता है हमारा, और तब ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में। राइट। तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली, जीएस थोड़ी बहुत क्या क्या पढ़ी, सब्जेक्ट थे आपके एंड पास? मैंने अपना पहला, मेरे पास थे सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे 2009 के अटेम्प्ट में। ओके। और हमारा आप समझ सकते हैं, मैंने ग्रेजुएशन भी रेगुलर कॉलेज से नहीं करी, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, तो वो एक एडेड एक माइंड में हमेशा रहता था कि पता नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस वालों का क्या करेंगे, हाँ। इंटरव्यू के अंदर क्या होगा। एनीवेज, उस टाइम पे एक और रीज़न था यूपीएससी देने का, वो वही सेफ्टी वाला कि मेरे अटेम्प्ट्स वैसे भी एज वाइज खत्म होने वाले थे। मतलब मैं जनरल हाँ। कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो एक तो वैसे ही एज वाइज खत्म हो गया था, तो मुझे तीस लगा 30 की उम्र, राइट। या 30 की उम्र, हाँ। एंड आई वाज 26 मिड, और 27 में मैंने शुरू करा, तो वैसे भी 28 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, तो मतलब वैसे भी मैं 3 ही अटेम्प्ट दे पाऊंगी, एज राइट। वाइज तो एक वैसे ही लूज, तो दे देते हैं अटेम्प्ट। और एक ये हमें जनरल मतलब थोड़ा होता भी है कि हम लोग हमेशा फील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एज़ आई लुक बैक आई फील कि दे देना या चाहिए था, मतलब अपनी तैयारी राइट, को दे राइट। हम लोग एक्चुअली देना। वो प्रिपरेशन के बारे में बड़ा सोचते हैं ना हम लोग, यस, और हमारे दिमाग में हमेशा वर्स्ट जो सिचुएशन होती है वो चल रही होती है कि फेल हो यस, गए तो क्या होगा। हम कभी नहीं सोचते सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा। यस, नेवर। यस, यस, यस। तो मैंने खैर पहला अटेम्प्ट दिया, और पहले अटेम्प्ट में भी मेरा क्लियर हुआ, मुझे रेलवेज मिला। नाउ हाँ। पहले अटेम्प्ट के अंदर में क्या रहा कि पहले अटेम्प्ट में जो कि मुझे लगता है कि टेक अवेज फ्रॉम माई जर्नी ऑल्सो, कि हम लोग जनरली जो बच्चे पहली बार तैयारी शुरू करते हैं, जिनको गाइडेंस जनरली होती भी है या नहीं भी होती, हम लोग प्रीलिम्स पे इतना फोकस कर लेते हैं कि हम लोग मेंस की तैयारी करना, हम मतलब हम फर्स्ट हर्डल पे इतना फोकस कर लेते हैं कि हम मेंस का सोचते नहीं कि दूसरी हर्डल पे क्या करोगे। तो मैंने इतना ज्यादा फोकस कर लिया प्रीलिम्स पे कि प्रीलिम्स मेरा बिल्कुल मतलब आई वाज अमंग द टॉपर्स, जबकि प्रीलिम्स इज जस्ट अ हाँ। क्वालिफाइंग एग्जाम। तो राइट। उससे क्या हुआ कि मेंस के सेकंड सब्जेक्ट की मेरी तैयारी नहीं थी। मतलब मैंने सोशियोलॉजी तो तैयार कर ली, उस टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स होते थे, तो पबमेट मैंने कोचिंग प्री के रिजल्ट आने के बाद शुरू करी, जो सिर्फ 2 महीने का टाइम था। उसके बावजूद कैन यू इमेजिन, मैंने पेपर क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेंस भी क्लियर? इंटरव्यू, या मेंस भी क्लियर, वाओ। इंटरव्यू भी क्लियर। आई गॉट 208 मार्क्स इन माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मेरे वाओ। जो सो बेसिकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ, और मुझे रेलवेज मिला। अब आप समझ सकते हैं जब मेरे को कॉन्फिडेंस कब आया लाइफ में, जब मेरा ये पहले टाइम में रेलवेज हो गया, और इतने मीन टाइम में मैंने हरियाणा का स्टेट सर्विसेज भी दिया, राइट। सिविल सर्विसेज, और मेरा पीसीएस। यस पीसीएस, और मेरा यहाँ पे भी क्लियर हो गया। तो जब मेरा ये क्लियर हो गया, तो मैंने रेलवे नहीं, और अब हमें जो, अब मतलब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो मेरे को बैंक पीओ जब मैंने दिया, तभी मेरे को उसी वक्त 23 साल की उम्र में, या मतलब 3 साल मैंने बैंक में नौकरी करी, उसके बाद हो मैंने जाना शुरू चाहिए था। की तैयारी। तो मुझे लगता है वो 23 साल की उम्र में आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है, यू आर मोर। तो आप वो चीज़, मुझे जो कॉन्फिडेंस 23 की उम्र में आना चाहिए था, वो मुझे 28 की उम्र में पहला अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद आया। और आई एम श्योर किसी ना किसी ने आपको ये जरूर कहा होगा कि बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देखो वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों को बड़ी सारी ऐसी प्यारी प्यारी लाइंस बताई जाती है हर चीज में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेने के लिए। यस, यस। तो अब जब पहले अटेम्प्ट में ये सब हुआ, और पहले अटेम्प्ट में जो एक डर भी था कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, तो पता नहीं रेगुलर कॉलेज भी नहीं किया क्या होगा, बट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन माय इंटरव्यू राइट, 208। और राइट। मेंस में मेरे, क्योंकि मैंने बताया कि मेंस में सेकंड सब्जेक्ट की तैयारी मैंने बाद में शुरू करी थी, तो मेरे मेंस पे जस्ट मतलब बीच के नंबर थे, लाइक क्लियर तो कर लिया था, बट क्योंकि दोनों का टोटल करके हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, तो राइट। उसमें मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया। मेरा रैंक इतना आया कि मुझे रेलवे मिला। तो एनीवेज, पर कॉन्फिडेंस आ गया। The हाँ। good thing was that. Now in my second attempt, I gave my second attempt, और उस टाइम पे क्या हुआ, मेंस में बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब आप हाँ। सब्जेक्ट वगैरह सब था। एंड नाउ बाय लक, और आई डोंट नो माय मिसफॉर्चून और एवर, हमेशा ही मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। बट इस हाँ। बार मेरे को इंटरव्यू में मिले सिर्फ 140 नंबर, ओनली 140
आउट ऑफ, सो बेसिकली जो पिछली बार 208 मिले थे, और अगर जो भी यूपीएससी की जर्नी जानता है वो जानता है कि जनरल कैटेगरी के लिए तो एक नंबर पे भी मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत तो फर्क पड़ता है। 60 नंबरों का फर्क हो गया, 60 हम्म। मार्क्स। सो 60 मार्क्स में अल्टीमेटली फिर वही हुआ कि मेंस में बहुत अच्छा स्कोर था, इंटरव्यू में कम आया, तो अल्टीमेटली फिर हमें रेलवेज मिला। हाँ। तो आपने बोला ये जिंदगी की ट्रेन ही लगाने में लगे हुए हैं, रेल लगाई हुई है, हर कोई जाके बोल रहा है रेलवे रेलवे। एंड इन द हाँ। मीन टाइम मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने हरियाणा से, और मैंने रेलवेज दोनों बार ज्वाइन नहीं किया। राइट। अब हुआ क्या, जब दूसरी बार मैंने अटेम्प्ट दिया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट थी, और मेरे टीचर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट थे हमारे मेंस, मतलब मेंस के जो हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, कि आई वाज अमंग द टॉप 100 और 200 कैंडिडेट्स अमंग मेंस। तो टीचर्स भी हमेशा बोलते थे अरे तुम्हारा तो टॉप 100 में आएगा। तो बेसिकली वो जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, और जो प्री होता है राइट। नेक्स्ट ईयर, उसमें सिर्फ मुश्किल से 15 या 20 दिन का गैप होता है। और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो इस बार तो टॉप 100 में रैंक आएगा। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया रेलवेज का, आई गॉट इन टू अ डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार लाइफ खत्म हो गई। नाउ दिस इज अनदर लर्निंग, कि अगर वो 15 20 दिन में थोड़ा, ठीक है जो भी रिजल्ट आया, आई शुड हैव टेकन इट इन माय स्ट्राइड, एंड मेरे पास तीसरा अटेम्प्ट था, मैं उसको अच्छे से दे देती। तो मतलब अब यू आर, एज लक वुड हैव इट, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, आई लॉस्ट इट बाय 0.5 मार्क्स, हम्म। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और मैंने इससे पहले बैंक पीओ 3 बार निकाले थे, तो उसी साल सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था हाँ। यूपी में। तो और मेरे लिए सी सेट कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, जब मैं बैंक पीओ 3 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ तो सी सेट, बट राइट। क्योंकि आई वॉज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माई माइंड, मैं अभी तक वो फेलियर की उसमें थी कि मेरा कैसे रह गया, मेरा कैसे हाँ। बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा होगा, छन से जो टूटे कोई सपना। आई जस्ट टेल यू। सो बेसिकली वो कहते हैं ना, स्टोरी में अभी बहुत ट्विस्ट है। सो हाँ। आई लॉस्ट माई प्री, और मेरे 3 अटेम्प्ट थे जनरल कैटेगरी वाइज, सब खत्म। सो जैसे वो ब्रेकअप होता है, कि आपका हम्म। यूपीएससी से ब्रेकअप होता है, एंड आई वाज इनटू माय सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, आई सेड कि हो गई अपनी यूपीएससी की जर्नी, हाँ। अब बस्ता बंद। और मैंने मतलब हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना छोड़ दिया, कि हाँ। नहीं मुझे देखना भी नहीं अखबारों को। तो आई ज्वाइंड इनटू हरियाणा पुलिस, एंड आई वाज अंडरगोइंग माय ट्रेनिंग, एंड मैं उसके बाद फील्ड में थी एज एसीपी इन गुरुग्राम एंड ऑल। तो हाँ। देन सडनली, मतलब लाइक माय लाइफ इज नाउ फुल सेटल्ड, और कोई अटेम्प्ट नहीं, कुछ नहीं। नाउ एज लक वुड हैव इट, जैसे डेस्टिनी इंटरवीन करती है, तो 5 साल के बाद में सडनली एक ऑप्शन मिला 2011 वाले कैंडिडेट्स को, जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट था या कुछ भी था, एज वाइज जो भी था, जिनकी एज वेज सब हो चुका है, एक लास्ट अटेम्प्ट दिया सरकार ने, पार्लियामेंट एक स्पेशल उसके थ्रू, कि जिन्होंने 2011 में, क्योंकि सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था और लोगों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो मुझे वो अटेम्प्ट फिर मिला। से निकले अखबार बाहर, किताबें बाहर। नहीं, I just tell you the story is very interesting. So basically after 5 years I got an attempt, जबकि मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, पूरी तैयारी छोड़ चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, and I was 9 months pregnant. मतलब जब राइट। मैंने प्री दिया तो I was 9 months pregnant, और मैंने मतलब 5 साल से किताब नहीं उठाई है, बीच में सिलेबस चेंज हो गया है, एंड आई वाज इन टोटल हार्डकोर पुलिसिंग। तो फरवरी में नोटिफिकेशन आया कि आई कैन गिव माई एग्जाम, एंड आई वाज दैट टाइम 2 3 months प्रेग्नेंट, और अगस्त में पेपर था, और फरवरी तक मतलब आप ये मानिए कि 5 साल से मैंने कुछ भी नहीं उठाया है, सिलेबस चेंज हो चुका है सब कुछ। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ बोल रही हूँ कि क्या करूँ, पेपर दूँ क्या। तो ही वाज लाइक कि तुम्हारी मर्जी है, मैं सोच रही हूँ कि चलो देयर इज नथिंग टू लूज, देने में क्या अर्ज है। एंड नाउ देयर वाज अ चेंज इन एटीट्यूड व्हिच आई रियली फील। जो पहले मैं यूपीएससी दे रही थी बिकॉज आई वाज इन वेल सेटल्ड करियर ऑल माय ऑन माय ओन, तो ऐसा कोई, आई वाज हैप्पी इन सिविल सर्विसेज, इवन इन स्टेट सर्विसेज। तो मेरे को ये था कि चलो देख के देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, बट आई वाज वेरी पॉजिटिव एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सेल्फ राइट। बिलीव वो जो था ना, वो बड़ा कूट कूट के भरा था। हम्म। तो इन ऑल दिस, मैंने जब अगस्त में पेपर दिया तो आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स, और उसी पेपर में मेरा 308 रैंक जो है मेरा आया था। राइट। राइट। और उसमें मेरा बेटा हुआ सितंबर में। आई इट वाज थ्रू सिजेरियन डिलीवरी, और उसके बावजूद मतलब मैं 1 महीना 1.5 महीना बेड रेस्ट पे थी, दिसंबर में पेपर थे। तो 1.5 महीने के बच्चे के साथ, 2.5 महीने के बच्चे के साथ पेपर देना, जबकि तुमने कोई टच नहीं ब्यूटिफुल। करना। सो ब्यूटिफुल। इट वाज लाइक दैट। बट आई फील कि मतलब जो कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ बिलीफ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए था, जब हम प्री से डरते डरते पेपर दे रहे थे, क्वालिफाई तब भी किया, लेकिन अगर ये सेल्फ बिलीफ एटीट्यूड तब होता जब मेरे पास राइटिंग प्रैक्टिस भी थी,
अब तो 5 साल से मैंने किताब नहीं उठाई थी, मैंने कुछ लिखा नहीं था, आंसर राइटिंग कोई प्रैक्टिस नहीं थी, बट आई जस्ट गेव इट एंड आई क्लियर इट. सो दिस इज द जर्नी. एंड इंटरेस्टिंगली उसके बाद मैंने किताब भी लिखी हाँ, यूपीएससी के बच्चों के एक लिए. अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है कि द ओनली प्रॉब्लम विद एक्सपीरियंस इज व्हेन यू हैव इट यू कांट यूज इट. तो दूसरों के एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा जा सकता है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये इंस्पिरेशनल तो बहुत ज्यादा है ही. बट मुझे एक चीज जो आपकी कहानी सुन के समझ में आई वो ये कि जो हमारा सेल्फ डाउट है ना, उससे ज्यादा एक मिडिल क्लास को कोई नहीं मारता है. हर चीज को Yes, डीले करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सेल्फ डाउट का है, उस डर का है. एंड समटाइम्स आई फील कि एक हम चीज उलझे रहते हैं. जो मैंने एक बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे, बर्न योर बोट्स. हम्म. उसमें ये था कि एक कहीं पे देयर वाज अ बैटल गोइंग ऑन. एक जो लोग मतलब उस बीच पे उतरे, एक मतलब दूसरी दूसरी कंट्री के जो उस बीच पे उतरे, तो उनको ये था कि वो बहुत कम तादाद में थे, और दूसरा वो उस टेरिटरी पे आए थे, तो जो उस बीच पे मतलब लोग थे वो उनको आसानी से हरा सकते थे. लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो उसका कैप्टन था वो जैसे उतरे बीच पे, उन्होंने वो बोट्स जो है बर्न कर दी, मतलब जिस जिस बोट से वो आए थे. और वो लोगों ने, जो 20 लोग थे और उनके सामने 100 लोग थे, उन्होंने 20 लोगों ने वो जंग जीत ली. वाह. क्योंकि उसके पीछे फर्क क्या था कि कैप्टन ही बर्न द बोट्स. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी. दे हैव टू, मतलब उनको पता था कि नहीं जीते तो हम मरेंगे. सो आई फील के इट समटाइम्स लाइफ में हमें अपनी बोट्स जो है, सेफ बोट्स बर्न कर देनी चाहिए. मत बोलो, बहुत लोग जला देंगे अपनी बोट्स. बहुत रेजिग्नेशन डलवाओगे आप ये आपकी बात सुन के नहीं सब नहीं रिजाइन आई कर रहे होंगे अभी. नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज फील कि यू शुड होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द एब्सोल्युटली, वर्स्ट. तो एब्सोल्युटली, बट हमारे एब्सोल्युटली. साथ उल्टा होता है, वी होप फॉर द वर्स्ट एंड prepare for the best. So I think it's very important कि we need to be hopeful. We need to राइट. have that belief in ourselves. और you who would have imagined, मतलब अगर मैं 22 साल की पूनम को कोई बोलती कि तुम आगे जाके 2 किताबें लिखोगी जो बेस्ट सेलर होंगी सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए ही, तो मैं कहती अरे मजाक कर रहे हो क्या. राइट. नाउ राइट. आफ्टर माय क्लियरिंग ऑफ एग्जाम आई हैव रिटन 2 बुक्स यूपीएससी के बच्चों के लिए. एंड नाउ इवन आई मेंटर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स आईएएस निकल रहे हैं. तो मतलब कैन यू इमेजिन 22-23 साल की पूनम को कोई ये बताए कि तुम फ्यूचर में ये करने वाली हो, एंड क्या वो इमेजिन कर बट पाएगी. पूनम, ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता है हम सबके अंदर ही कहीं ना कहीं होता है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. हमें लगता है कि वी डोंट डिजर्व इट, वी कैन नॉट डू इट. जब आप भी वो पहली बार जब एसबीआई में आप काम कर रहे थे और आप जो आईएएस ऑफिसर थे जिनके बच्चे का अकाउंट सेटल करने के लिए आप वहां पर गए, अगर वो एक्सपीरियंस आप नहीं करते और वो आपको रिलेटेबल नहीं लगता, वो आपको ये नहीं लगता कि हाँ फीजिबल है, ये बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती. आई इस थिंक ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ने का क्या तरीका, व्हाट डू यू थिंक की, और एंड स्पेशली फॉर वुमेन, मतलब लड़कों के पास मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग तो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, किस्मत वाले हैं लड़के इस देश में अगर हैं. हाँ हाँ, मतलब आप हमसे ज्यादा तो सॉर्टेड कोई है ही नहीं. सब कुछ हमारे हाथों में. सब कुछ हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. लेकिन आप जहां पर, और ऐसी फैमिली से आना, आप तो खैर पढ़ी लिखी फैमिली से थी, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे आपके साथ पेयर ग्रुप में रहे होंगे लोग जहां पर कि उतना इनकरेजमेंट नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं है, भले ही टैलेंट हो. वैसी बहुत सारी लड़कियां शायद आपको सुन रही होंगी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आई वुड ओनली से कि मतलब पहले तो लड़कियों को खासकर, मतलब बिकॉज दिस इज अगेन अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि हम लड़कियों है ना पहले खुद को इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करना शुरू करें. जैसे मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी, आई वुड मतलब आई वांट टू थैंक माय फैमिली कि उन्होंने हमेशा, मतलब ये तो मुझे ऑप्शन दिया कि आपको ये करना है, वो फैसला मेरा था टीचर स्टेट करने का, लेकिन वो डर भी मेरा अपना था. तो मुझे लगता है एक तो सेल्फ बिलीफ होने की बहुत ज़रूरत है हमारे अपनी आप काबिलियत में. आपको पता है आप क्या कर सकते हो, तो कई बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. दूसरा, लड़कियां खासकर दे नीड टू फर्स्ट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल. हम लोगों को, मैं कई बार गाँव में लड़कियों को देखती हूँ या औरतों को देखती हूँ, उनकी कोई सही नहीं है, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, या तो वो किसी की बीवी है या वो किसी की बेटी है, या तो मुझे आपका लगता है कि वो पहले तो वो अटका है खुद को अभी. एज अ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने ड्रीम्स को समझें और उसको चेज करें. तो मुझे लगता है कि नथिंग इज, मतलब लड़कियां तो वैसे भी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल बचपन से वैसे ही देख लेती हैं, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. उनके पास एक ऐसी
मान लें तो वो उसे अचीव करके ही रहती हैं। मुझे एक और चीज लगती है लाइफ, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लाइफ इज ऑल अबाउट जीरोस एंड वंस, इट्स जस्ट बाइनरी। हमें हमें जब भी कोई मोमेंट आता है हमें या तो जीरोस याद रहते हैं या वन याद रहते हैं। आपकी लाइफ का जीरो और वन क्या था, जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे आप बता दो। सो आई वुड से कि मेरी लाइफ का ज़ीरो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, आई वुड डिफाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो पॉइंट्स हैं। एक तो जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं प्री लीग क्वालिफाई कर पाई, मतलब आई कुड हैव टेकन दैट फेलियर इनटू माय स्ट्राइड एंड मतलब ठीक है, समटाइम्स इन लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं और आपको उसको स्ट्राइड में लेके करना चाहिए। और एक ज़ीरो मुझे लगेगा कि ट्वेल्थ के बाद आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, और वाह, जैसे वो साइंस भी में आई एम मैं श्योर ये तो हो सकता था, देखो ये तो बहुत पॉसिबल था। ये तो आई कर डोंट सकते थे आप। नो 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 आई वांटेड टू बी डॉक्टर, पर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हुआ, पर बीडीएस में करना नहीं चाहती थी। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट था कि मुझे लगा कि चलो डॉक्टर नहीं, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मेरा फर्स्ट लव नहीं था, बट इंजीनियरिंग में हो गया था। तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया और मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करा। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके इंजीनियरिंग करना would have been better। ऐसा मुझे लगता है। चीज़ ये है कि वन इट वुड बी आई थिंक एट स्टेज माय लाइफ वेयर आई एम कॉन्फिडेंट, वेयर जब ये सिलेक्शन हुआ और ये बुक वगैरह पब्लिश हुई, तो आई वुड फील कि नाउ आई एम अ मच सॉर्टेड आउट पर्सन दैट वे, एटलीस्ट यू नो इन माय हेड के समटाइम्स हम इतना फंसी हो जाते हैं, खासकर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग अपनी हाँ, पूरी लाइफ को ना एक एग्जाम के आजू बाजू सेंटर कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये चीज़ें इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। सो राइट। ऑलवेज नाउ कुड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द कोट कि इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। ओह क्या सो बात है, क्या बात है, सुपर। आई थिंक वो बहुत सही लाइन थी, इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। और वन कौन सा रहा है आपका? या इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस, सॉरी, वन आई वुड आई अगेन से कि वन इज वही जब सिलेक्शन हुआ मेरा, आई थिंक जब मेरा स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, तो दैट वाज अ वेरी मच हाईलाइट फॉर मी बिकॉज आई रियली enjoyed that moment। एंड फिर जब 308 आया तो वो भी मतलब इट वाज ओके, बट आई थिंक स्टेट सर्विसेज वाला, सिविल सर्विसेज वाला वाज रियली गुड। राइट। उसके अलावा एक चीज़ और मैं सबको आई रियली वांट टू टेल पीपल दैट के हम लोग जर्नलिस्ट जब सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो हम इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज वी गेट एन अपॉर्चुनिटी कि हम देश के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएँ सोसाइटी में। जो भी आदमी इस सर्विस में आ रहा है वो कहीं ना कहीं मन में तो यही सोच के आता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, अगर आपका हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो याद रखें कि आप अच्छा काम सिर्फ आईएएस बन के, आईपीएस बन के ही नहीं कर सकते, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं अच्छा काम। तो अगर आप टीचर भी हैं, एब्सोल्युटली। अगर आप कहीं पे भी हैं, आप वहाँ पे भी पॉजिटिव चेंज ला के एक अच्छा काम कर सकते हैं। आई थिंक एज अ आरजे यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, वो भी यू आर मैं तो ऑल्सो सबसे अच्छा स्प्रेडिंग अ काम कर रहा पॉजिटिव हूँ पूनम, मैं आपको चेंज। बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं, ऐसा दैट्स लगता व्हाट है। आई एम सेइंग। नहीं नहीं, आई मीन इट। सो दे कोई कोई मतलब आप कहीं पे भी रह के आप एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, अपनी जो भी आपका एग्जाम का टारगेट है या जो भी आपका राइट। बट अगर आपका नहीं होता तो डोंट लूज हर्ट बिकॉज, एंड एक चीज ये भी समझने की जरूरत है, जो लोग हम लिस्ट में आते हैं और जो नहीं आ पाते, वो नहीं आ पाते भी इक्वली उतने टैलेंटेड हैं। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है मेरी यूपीएससी जर्नी में जो मेरे साथ एस्पिरेंट्स थे जिनका नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, या तो मेंस क्लियर नहीं हुआ या मेंस क्लियर होके फिर फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेहनत में हो सकता है उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी हो। राइट। नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जज, और ना ही वो मतलब वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस आदमी ने कुछ भी अचीव किया है या नहीं भी कर पाया, जो उसने जिसने कोशिश भी करी, आई थिंक कोशिश करना मैटर्स। नहीं हो पाया, राइट। आई राइट। हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर वरना सो कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो नहीं हो पाए, लेकिन कुछ देखो बहुत सारे रीजन होते हैं जब एग्जाम क्लियर होता है। आई एम द सेम पूनम जिसको राइट। पहले अटेम्प्ट में 208 मिले, दूसरे अटेम्प्ट में 140 मिले इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी वाइज तो मैं सेम ही पर्सनैलिटी हूँ ना। तो राइट। देयर राइट। सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स वी नीड ऑलवेज राइट। दिस थिंग टू नोट। उसीलिए बोलते हैं कि वो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस। दो चीजें इस पूरे इंटरव्यू के बारे में, एक जो आपको बहुत अच्छी लगी, एक जो आपको इतनी अच्छी नहीं लगी। इंटरव्यू के बारे में लाइक अभी हाँ जी, ऑलरेडी हमारे हमारे इस इंटरेक्शन के बारे में। नहीं, मुझे ऐसा बहुत बेकार तो कुछ भी नहीं लगा, बेकार कुछ भी नहीं लगा। तो
I would say it was a very lively interview, and I'm like, पहले एक जो स्ट्रक्चर वगैरह आपकी टीम ने मुझे बताया था, तो आई वाज फीलिंग कि अच्छा एक स्ट्रक्चर से होगा, बट आई एम मोर हैप्पी दैट वी इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन, so that you are able to tell in a more unstructured way, तो तुम ज़्यादा तरीके से समझा पाते हो. And I राइट really hope कि this interview is going to benefit at least अगर एक या दो को भी लगता है, because after being married, after being having a child, I every day I get mails from all over India. कई लड़कियों की मुझे मेल आती हैं जो बोलते हैं कि हम मैरिज के बाद में भी we want to give, we don't want to give up on our dreams. तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ये भी बात हमें लोगों को बताना कि anything is achievable, anything is राइट achievable, even impossible says I am possible if you break एब्सोल्युटली it down. So एब्सोल्युटली just have a belief in your dreams, and please, more importantly, कोई तीसरा आदमी आपके लिए cannot, should not judge for you, should not make decisions for you. As a lady, you need to take control of your life. I was fortunate to have my family, but at the same time मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सिविल्स देना मेरा खुद का फैसला था. तो राइट वो फैसला तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स. यू राइट नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. थैंक यू सो मच पूनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. सेम हियर अभिलाष, इट वाज अ आप प्लेजर. इंस्पायर करते रहिए ऐसे ही लोगों को, अपनी कहानी जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए. हम लोग जितने लोगों तक आपकी कहानी पहुंचा सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय.